Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and continuing our thermodynamics lecture. Today we are going to study in Introduction to Thermodynamics what is thermodynamic equilibrium. For a body to be in thermodynamic equilibrium, it should contain three types of equilibrium. Okay, for if a body is in thermodynamic equilibrium, it should have three types of equilibrium, and that are: first one is mechanical equilibrium, second one is chemical equilibrium, and third one is thermal equilibrium. All these three equilibrium should be in a body, in a system, so that it is in thermodynamic equilibrium. ठीक है, तो हम लोग ऊष्मागतिकी के इंट्रोडक्शंस को पढ़ रहे थे, जिसमें अब हम आगे पढ़ते हुए देखने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी की साम्य अवस्था। तो किसी भी शरीर में, किसी भी निकाय में ऊष्मागतिकी की साम्य अवस्था तब होगी जब उसमें तीन प्रकार की साम्य अवस्था है। ये तीन प्रकार की साम्य अवस्था कौन कौन सी है? यांत्रिक साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य अवस्था और ऊष्मीय साम्य अवस्था। तो थर्मोडायनेमिक साम्य अवस्था या फिर ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था तब होगी जब उसमें यांत्रिक साम्य अवस्था है, रासायनिक साम्य अवस्था है, ऊष्मीय साम्य अवस्था है। अब इन तीन को डिटेल में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Thermodynamics, we have already discussed that thermodynamics is simply the study of heat and work. It is a branch of science. It can be also said as branch of physics. Okay, so according to this, equilibrium we are going to define now. Already we have defined thermodynamics. Okay, thermodynamics can be said that it is simply the study of heat and work and conversion of energy into many forms. So now we are going to define equilibrium. What is equilibrium? Okay, the term equilibrium means that the state of balance, that the state is balanced. You understand the meaning of balance of system within itself. Okay, inside. Okay, within itself means inside and between the system and surrounding. First there has to be balance inside the system. Okay, you already know what is system, what is surrounding, and then there has to be a balance between the system and the surrounding. ठीक है, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं साम्य अवस्था। तो अब साम्य अवस्था क्या होती है? ऊष्मागतिकी हम आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी ये एक ब्रांच है। ठीक है, ये आपका भाग है, हम कह सकते हैं आपका विज्ञान का भाग कह सकते हैं, भौतिकी का आपका भाग कह सकते हैं, जिसमें हम ऊष्मा और कार्य को और ऊर्जा के कई रूपों में परिवर्तन को आपका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ डिफाइन करना जा रहे हैं साम्य अवस्था क्या है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था क्या होती है। तो साम्य अवस्था क्या है? साम्य अवस्था शब्द का अर्थ है व्यवस्था के भीतर और आसपास प्रणाली के संतुलन की स्थिति। तो सबसे पहली चीज जो आपका है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि संतुलन होना चाहिए। संतुलन कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले आपका जो निकाय है, जो आपका शरीर है, उसके अंदर संतुलन होना चाहिए। पहली चीज अंदर संतुलन होना चाहिए, तथा अंदर के साथ उसके जो आसपास की चीजें हैं, यानी कि आपका निकाय का आपका जो संतुलन है वो किसके साथ होना चाहिए? परिवेश या वातावरण के साथ होना चाहिए। तो निकाय के अंदर भी जब संतुलन होगा और उसके आसपास यानी कि निकाय का उसके परिवेश से, उसके वातावरण से भी जब संतुलन होगा, इस संतुलन की स्थिति को हम कहेंगे कि साम्य अवस्था होती है। So as I told you, there should be three types of equilibrium. Now we are going to discuss in details each type of equilibrium which should be there in order a thermodynamic equilibrium exists. Okay, now the first one is mechanical equilibrium. So what is mechanical equilibrium? A body in condition of rest. Rest, that means that there is no motion such that all the forces on the body. So one condition can be that there are no forces on the body. So if there are no forces on the body, then the body will be at rest. There will be no motion. But suppose there are many forces on the body, and such that all the forces on the body are balanced and net force is zero.
So either the force itself should be zero or the total applied force, the net force should be zero. Such a condition will be of mechanical equilibrium. That again we are talking again and again of being balanced. So forces are balanced, that is equilibrium. So either there are no forces, then it is mechanical equilibrium, or if there are forces but the forces are completely balanced such that our object, our system does not moves, then it will be a mechanical equilibrium. Okay, next we are going to talk about chemical equilibrium. Now what happens in chemical equilibrium? The state in which both reactants and products are present. So we are considering a condition where there is a possibility of a reaction. We have a reactant and we have a product, okay, and they have some concentration, means they have some amount of reactant, some amount of product, which have no further tendency to change with time. Now they have reached such a state that now there is no tendency that there will be any change in it. That, like suppose there was example of water in sugar, or that we are dissolving water into sugar. Now when we start dissolving, then that is condition that there is no chemical equilibrium. You can see sugar is different, water is different, but when you completely dissolve it, now the concentration, now you can see the sugar has dissolved, its concentration will not change. When you are dissolving, initially dissolved sugar will be less, okay, when it is fully dissolved, okay, when a condition has reached which there is no further tendency to change with time, such a case there will be no chemical reaction, no chemical interaction in the body. Such a case will be of chemical equilibrium. So first of all, like mechanical, no forces or all the forces are balanced. So in chemical also, either no reaction or after the reaction there is a condition that no further reaction will take place. The state which has been achieved, it will not change with time. Okay, and the third one, thermal. This one is the most easy one for you to understand. Thermal equilibrium, it's very simple. A system is said to be in thermal equilibrium when there is no temperature difference between the present and the temperature remains equal at all point. Okay, so there is no temperature difference. So thermal equilibrium, heat, so we calculate, we see the intensity of heat with respect to temperature. If the temperature is more, that means heat is more. If the temperature is less, that means heat is less. So first of all, if between system and surrounding, or between two bodies, if there is no temperature difference, then there will be no heat flow. Then such a condition will be that there is thermal equilibrium. For thermal equilibrium, there should not be any heat flow. No heat flow should take place and temperature at all points should be equal. So if the temperature will be different, heat flows when the temperature is different. If the temperature will different, then heat will flow and there will be no thermal equilibrium. But if the temperature is same, no heat will flow and it will be in thermal equilibrium. It will be in a balanced condition that the heat will be contained at whatever position it is present. So these are the three kind of things that has to be there for a thermodynamic complete equilibrium to exist. ठीक है, तो हिंदी में बात करते हैं मैकेनिकल साम्यावस्था, यांत्रिक साम्यावस्था भी कह सकते हैं. ठीक है, अचल की स्थिति में, यानी कि जब वो कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई आपकी बॉडी है, कोई आपका निकाय है जो चल नहीं सकता, अचल की स्थिति में शरीर ऐसा है कि शरीर पर सभी बल संतुलित हैं और शुद्ध बल शून्य है. ठीक है, तो बल आपका उस पर या तो वही हमने बताई आपको कंडीशन, या तो बल लग ही ना रहा हो. बल लग नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें साम्यावस्था होगी, वो अचल की स्थिति में होगा. मगर अगर बल लग रहा है और कई सारे बल लग रहे हैं तो उनका जो शुद्ध बल है ना, यानी कि उसका जो पूरा आपका जो इफेक्ट है ना, वो क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए इस तरह से कि सारे बल लगने के बाद, अभी हम इसको कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, कि सारे बल लगने के बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सिस्टम है, वो आपका अचल की स्थिति में होना चाहिए. शुद्ध बल जो है उस पर शून्य होना चाहिए. ऐसी आपकी जो स्थिति होगी, ऐसे संतुलन को हम कहेंगे कि हमारी यांत्रिक साम्य अवस्था है.
जब हमारी बॉडी आपका संतुलित रूप से, ठीक है, अचल की स्थिति में होगी। रासायनिक साम्यावस्था, ठीक है, वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद, है ना, एक आपका अभिकारक और उत्पाद जिनके बीच में आपका, है ना, कुछ रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, दोनों सांद्रता में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी समय के साथ बदलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो सांद्रता यहाँ कंसंट्रेशन, कि इनका जो कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक बार जो भी आपका रिएक्शन होना था वो हो गया, अब उसमें कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, यानी कि शरीर में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये हमने बताया कि या तो कोई रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो, या जो आपकी प्रतिक्रिया होनी है, ठीक है, तो वो प्रतिक्रिया होने के बाद वो आपका क्या करे, रुक जाए, है ना, उसके बाद अब समय के साथ उसमें कोई बदलाव ना हो, है ना। शक्कर चीनी वाला सिंपल एग्जांपल लिया था, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि दो आपने केमिकल हैं, है ना, दो केमिकल आपने मिक्स किए, तो क्या होगा कि एक थोड़ी देर के लिए उनमें क्या हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन से आपको नया प्रोडक्ट मिल गया। अब जो नया प्रोडक्ट मिल गया अगर वो उसी अवस्था में बना रहता है तो ये हमारी रासायनिक साम्यावस्था होगी। मगर अगर उसमें कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जैसे नहीं आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक में, तो वो बबल्स तो कंटिन्यू निकलते रहते हैं ना, तो जब तक वो बबल्स उसमें निकलते रहेंगे उसकी जो अवस्था उसमें परिवर्तन होता रहेगा, तो वो रासायनिक साम्यावस्था आपकी नहीं होगी। मगर एक बार सारे बबल्स आपके निकल के बहुत देर तक आपने छोड़ दिया तो अब आपको दिख रहा है कोई उसमें बबल नहीं है, सब एस्केप कर गए हैं, ठीक है, तो अब आपको जो कह सकते हैं वो अब आपका किस में आ गया, रासायनिक साम्यावस्था में भी आ गया। और एक आध एग्जाम्पल हम लोग आगे उदाहरण ले लेंगे। ऊष्मीय साम्यावस्था सबसे आसान है ना, कि आपका ऊष्मा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ऊष्मीय साम्यावस्था के लिए आपका ऊष्मा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ऊष्मा का प्रवाह कब होता है, जब हमारे तापमान में असंतुलन होता है, ठीक है। तो एक प्रणाली को ऊष्मीय संतुलन कहा जाता है जब कोई तापमान का अंतर मौजूद नहीं होता, कि तापमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों का तापमान समान है। क्योंकि दोनों का तापमान समान हो जाएगा तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। अगर तापमान में अंतर है, ऊर्जा का प्रवाह होगा, ऊष्मीय साम्यावस्था नहीं होगी। तापमान में अंतर नहीं है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, तो ऊष्मीय साम्यावस्था होगी। और इसके लिए तापमान सभी बिंदु पर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तापमान सभी बिंदु पे बराबर हो, भाई कहीं पे भी अगर अलग हो गया, कहीं पे भी अलग हो गया तो फिर वहां पे ऊष्मा आपकी प्रवाह होने लगेगी, और ऊष्मा प्रवाह होने लगेगी तो ऊष्मीय साम्यावस्था आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका एक गर्ल होल्डिंग अ रॉक, ठीक है। तो इफ अ गर्ल इज होल्डिंग अ रॉक देन द ग्रेविटी फोर्स, ओके, एज यू नो दैट द ग्रेविटी फोर्स इज पुलिंग इट डाउन, okay, and the force applied by the girl is pulling it up, okay. So gravity force always acts down, okay, and the force applied by the girl, it is acting in the upward direction, okay. So when the girl holds a rock, as much as force as gravity pulls downward, okay, so this downward force is equal to the upward force applied by the girl, ठीक है। so what will happen, these two forces will cancel, the net force will be zero and the condition of the rock will be in equilibrium condition, ठीक है। तो ये आपका देखिए एक रॉक का आपका एग्जाम्पल है, पत्थर का, कि एक पत्थर अगर आप हाथ में उठा लेते हैं तो पत्थर को हाथ में उठाने पे क्या होगा कि आपकी देखिए जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कहाँ पे लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। आपका हाथ से जो आप फोर्स लगाओगे, आपके हाथ से आप जो बल लगाओगे, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और आपके हाथ से जो बल लगेगा वो कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब अगर ये दोनों ही बल जो हैं, है ना, एक आपका ये गुरुत्वाकर्षण हो गया, ठीक है, एक बल आपका कौन सा हो गया, आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, और दूसरा बल कौन सा हो गया, जो आप हाथ से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। अगर ये दोनों ही बल, है ना, आपस में आपके कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं,
ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, आपकी यांत्रिक साम्यावस्था की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 आपके बल से समझाया गया है, 2 से ज़्यादा बल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हर चीज़ आप अपने आसपास गौर कर सकते हैं। जो रुकी हुई है ना, एक घड़ी आपकी दीवार पे टंगी हुई है तो वो एक मैकेनिकल साम्यावस्था में है। आप एक जगह पे खड़े हुए हैं तो आप क्या कह सकते हैं, आप एक साम्यावस्था में हैं। आप जब चलने लगेंगे आपकी पोजीशन चेंज होने लगेगी, है ना, फोर्सेस अनबैलेंस होने लगेंगे, दौड़ने लगे आप, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में नहीं है, ठीक है। मगर यही देखिए दौड़ने का एग्जांपल किस तरह से चेंज हो जाता है। अगर आप जिम में एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आप ट्रेडमिल पे जब दौड़ रहे हैं तो आप एक ही जगह पे बने हुए हैं, बहुत सारा आप फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सारा आप पसीना बहा रहे हैं, मगर आप एक ही जगह पे बने हुए हैं। आपकी सारी जो फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को लगाने के बाद भी आपकी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप एक स्थिर स्थिति में हैं, तो वहां पे भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी ये एक यांत्रिक साम्यावस्था या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी है। ये देखिए आपका एक हम लोग ने बबल्स वाला एग्जांपल लिया था, शुगर सॉल्यूशन वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग आपका एग्जांपल हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स से एक लेके ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, खुली निकाय और बंद निकाय से आपका देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एन ओपन सिस्टम what will happen, that open system has water in it, okay. Now this water will evaporate from this open system and water will be converted into water vapor, okay. With time, you know, some amount of water is condensed back also, but the amount which is evaporating will be more than the amount which is condensing back, because as you can see that this system is an open system. Therefore the evaporation will be more and the condensation back will be less. Similarly, if you see for a closed system, now here you can see for a closed system what happens, there will be evaporation, there will be condensation, but since the evaporated water vapor cannot escape into the atmosphere, therefore the condition in the closed system will be of equilibrium, because the evaporation and the condensation will be same, because all the water vapor molecules will remain inside the closed system, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको समझाने के लिए आपका एक जो एग्जाम्पल लिया है आपका एक खुली निकाय का। तो देखिए खुली निकाय में आपका, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये आपका एक सपोज करिए कि खुली निकाय है, ठीक है। तो ये देखिए जिसमें ये आपका क्या हो रहा है, आपका वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, और ये वापस से आपका संघनन हो रहा है। मगर अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाष्पीकरण होता है वो ज़्यादा होता है, और क्योंकि खुली निकाय है, और जो संघनन होता है वो संघनन क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह के सिस्टम में आप कह सकते हैं असंतुलन है, ठीक है। ये आपकी साम्यावस्था की कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपका जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा है और संघनन जो है वो आपका कम है, ठीक है। तो इस वजह से, और ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो हमारा खुला हुआ है, तो जो वाटर वेपर ऊपर चला गया, ज़रूरी नहीं वो आसानी से आपका वापस नीचे आ जाए, ठीक है। इसी चीज़ को जब हम किस में देखते हैं, एक बंद निकाय में देखते हैं, तो हमने निकाय को देख सकते हैं ऊपर ढक्कन लगा के आपका बंद कर दिया है। अब आपका देखिए जो वाष्पीकरण होगा और आपका जो संघनन होगा, तो अब इस केस में देखें कि वाष्पीकरण और आपकी जो संघनन की प्रक्रिया है वो समान होगी, ठीक है। ये समान इसलिए हो रही है क्योंकि हमने क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया है। अब जो आपके वाटर वेपर यानी कि आपके जो जल वाष्प है, वो जल वाष्प आपका इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो ये दोनों बराबर होने की वजह से ये यहाँ पे एक जो साम्यावस्था की आपकी कंडीशन है वो आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल फॉर द थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। सो एज यू कैन सी, सपोज दैट देयर आर टू बॉडीज, वन इज हॉट एंड वन इज कोल्ड. So here you can clearly see, suppose this one is the hot body and this one is the cold body. So as you can see in the second figure, the temperature for the cold body is 0 degree Celsius
and the temperature for the hot body is 100 degree Celsius. Now what will happen with time? If both the objects are of same size, the final temperature of both the object will be 50 degree Celsius. So 100 plus 0 divided by 2, both the objects are of same size, 50 and 50 degree Celsius. Now this 50 degree Celsius condition, okay, so this 50 degree Celsius condition is of thermal equilibrium when the temperature is same and there will be no flow of heat. When the temperature is not same, then there will be flow of heat. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो है क्या क्या है, एक आपकी हॉट बॉडी है, एक आपकी क्या है, कोल्ड बॉडी है, एक गर्म है एक ठंडी है। ठीक है, तो जो आपकी गर्म बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, जो ठंडी बॉडी है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये 0 100 अगर एक ही आकार के हैं, एक दूसरे के आपके कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, जो फाइनल हम देखेंगे कि दोनों का जो अब टेम्परेचर हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये देखिए, ये जो कंडीशन आपको मिल गई 50 की, जहाँ पे जो टेम्परेचर आपका जो तापमान है वो बराबर हो गया, ऊष्मा का प्रवाह रुक गया। ठीक है, तो जब तक आप देख सकते हैं कि जो आपकी कंडीशन थी 0 100 वाली थी, तब तक इसके बीच में आपका क्या हो रहा था, ऊष्मा का आपका प्रवाह हो रहा था। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो ऊष्मा का आपका प्रवाह होगा वो 100 से 0 की तरफ आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई 100 के पास तापमान ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा होगी, 0 के पास कम है, तो 100 से 0 की तरफ होगा। तो 0 वाला का टेम्परेचर बढ़ के 50 हो गया, 100 वाले का घट के 50 हो गया। ये कंडीशन आपकी जो आ गई थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में ऊष्मीय साम्य अवस्था। Okay, now we have completed our first topic which we are going to cover. The first topic was the thermodynamic equilibrium. Okay, ऊष्मगतिकी साम्यावस्था, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब व्हाट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? ओके, इन थर्मोडायनेमिक्स a quasi static process is a thermodynamic process, so obviously it is a thermodynamic process that happens slowly. Now first and most important quality of this process is it happens very slowly for the system to remain in internal equilibrium. So now you already know what is a thermodynamic equilibrium. So it is a such kind of process in which when the process will occur, okay, during the process will be very slow, the process will be very slow, such that at any time the object, the system is in internal equilibrium. Okay, so an example of this quasi static compression where the volume of changes at a very slow rate. So suppose we are compressing anything and we are compressing it at a very slow rate. So this should be now obviously clear to you, general concept, that when we compress anything, so when we are compressing it, its volume will decrease and pressure will increase. Okay, so when you compress anything, it will try to expand back, so the pressure inside will increase. So anything you try to compress, its pressure increases. Temperature also, because the molecules were far apart, now they are coming close, है ना, due to this effect the temperature also increases. So when in compression volume will decrease, pressure will increase, temperature will increase, and the reverse will be expansion. Expansion, volume will increase, pressure will decrease, also temperature will decrease. This will be in a normal condition. Okay, so now if the volume change is at a very slow rate and the pressure and temperature is allowed to remain uniform and constant throughout the system, such a case will be a quasi-static process. We will discuss it in more details further. ठीक है, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं एक अर्ध स्थैतिक प्रक्रिया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अर्ध स्थैतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी में एक अर्ध स्थैतिक प्रक्रिया, एक थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिक
प्रक्रिया है जो सिस्टम के आंतरिक संतुलन में बने रहने के लिए धीरे धीरे पर्याप्त होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की आपकी प्रक्रिया है जो आपकी धीरे धीरे आपकी होती है और उसका जो आंतरिक संतुलन है उसको बनाए रखती है। तो पहली चीज आपको जो अर्धस्थैतिक प्रक्रिया के है इसके लिए याद रखना है कि ये बहुत ही जो प्रक्रिया होती है बहुत ही धीमे, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से होती है तथा इस प्रक्रिया में जो आपका सिस्टम या निकाय है उसका जो आंतरिक संतुलन है वो बना रहता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अभी हम इसको और एक्सप्लेन आपको करेंगे कि एक अर्धस्थैतिक संपीड़न। ठीक है, तो संपीड़न की जो प्रक्रिया होती है, कंप्रेशन को हिंदी में कहते हैं संपीड़न। तो जब हम संपीड़न करते हैं किसी भी चीज का, है ना, तो किसी भी सिस्टम का तो क्या होता है, उसका आयतन कम होता है। ठीक है, जो दाब होता है वो बढ़ता है और जो तापमान होता है वो बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को दबाएंगे तो उसका दाब बढ़ेगा ही, संपीड़न कर रहे हैं, दबा रहे हैं। टेम्परेचर भी, मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं, अणु होते हैं, वो पास पास आ जाते हैं तो उससे उसका कुछ तापमान भी बढ़ जाता है। तो संपीड़न में आयतन कम होगा, दाब बढ़ेगा और साथ ही साथ तापमान भी बढ़ेगा। इसी की अगर हम बात कर दें एक्सपेंशन यानी विस्तार की, तो विस्तार में आपका जो आयतन होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, दाब कम होगा और तापमान कम होगा। तो ये एक जनरल आपको एक आइडिया होना चाहिए, ये चीज़ आपको एक याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हमने उसका जो आयतन है वो संपीड़न इतने धीरे तरीके से कर रहे हैं कि उसका प्रेशर जो है आपका क्या रह रहा है, समान रह रहा है, स्थिर रह रहा है, दबाव जो है आपका वो स्थिर रह रहा है, तब ये अर्धस्थैतिक प्रक्रिया होगी। किस तरह से होगी, अब ये उदाहरण लेके हम आगे देखेंगे। So now in order to understand a quasi-static process in a simple layman language, you can understand it with a simple example. Okay, we will see one example. Okay, now what is this example? For understanding the quasi-static process in a better manner, suppose if a person is coming down from roof to ground floor. So suppose you are that person, you are at the rooftop and you are coming from the rooftop to the ground floor with the help of ladder steps. So you are taking one step one by one. Then this could be considered a quasi-static process. The process is occurring very slowly. You are doing one step at the ladder, then second, then third, then fourth, then fifth. In this condition, your body is completely in equilibrium condition. At any moment, suppose you are at ladder step 1. At that, if I see, you will be seen at a static condition. Step 2 static, step 3 static. Because each time when you take a step, you pause, you stop for a moment of second. So this can be considered as a quasi-static process. But suppose if you jump from the roof to the ground, okay, so if you jump from the roof to the ground, if at any moment I observe you, you will be always be seen to me, I will be seeing to you as you are in motion. At no point I can say that even for a second you were at rest position. When you were moving by the stairs, then I can see for even a millisecond you were at rest. You were at rest, then you took the third step, then you took the fifth step. But if you jump, now this will not be a quasi-static process. So this is not a thermodynamic example, but this is to make you understand that the process should be slow such that you can divide it into a number of steps. But when you are taking steps, okay, and when you jump, then you cannot divide it into number of steps. Such a process will not be a quasi-static process. But when you are taking it one step at a time, step by step, when you are taking it in that condition, then this will be a quasi-static process. ठीक है, तो अस्थिति प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं कि इसको बेहतर तरीके से हम समझ सकें। तो ये उदाहरण थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, ऊष्मागतिकी का नहीं है, एक जनरल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी के चरणों की मदद से छत से भूतल तक नीचे आ रहा है, तो सपोज कर लिए, अब मान लीजिए आप वो व्यक्ति हैं जो छत से आपका सीढ़ियों से एक एक सीढ़ी चढ़ के नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको अर्धस्थैतिक प्रक्रिया माना जा सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको देखूंगा तो मैं देखूंगा आपने एक स्टेप लिया, फिर आपने दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो हर एक स्टेप के बाद एक छोटा सा आपका क्या होता है, एक पॉज होता है।
ठीक है, एक हल्का सा, अगर आप बहुत तेज़ी से भी जाएंगे तब भी 1 सेकंड का पॉज होगा, क्योंकि आपको सीढ़ी पे पैर तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप फिर एक स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे, तो हर सीढ़ी पे एक कुछ मिली सेकेंड भी मान लें तब भी आपको उस पर पैर रखना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो तो आराम से 1-2 सेकंड उसमें लगेगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, बहुत धीमे तरीके से हो रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि हमारी अर्धस्थैतिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका अपोजिट जस्ट क्या होगा कि अगर आप छत से छलांग लगा दें, तो अगर आप छत से छलांग लगा देंगे तो मैं आपको देख रहा हूं तो किसी भी आपकी स्थिति में ऐसा नहीं लगेगा कि आप 1 मिली सेकेंड के लिए भी रुके, आप मुझे लगातार गिरते हुए दिखेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होगी वो अर्धस्थैतिक नहीं होगी, जो बिल्कुल लगातार हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है। मगर जो प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारी अर्धस्थैतिक प्रक्रिया होगी। अब इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपका एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था। No, the example which is asked in exam also, so now we are going to consider that. Now let us consider an assembly of cylinder and piston as shown in the figure. Okay, so this is the figure. Okay, here you can clearly see that there is a cylinder. Okay, so this is your cylinder. Okay, now here it is a piston. Okay, you can see this here is a piston over here. Okay, then you can clearly see a weight has been put on it, W. Okay, and there is some gas filled inside that cylinder which has some pressure, volume, temperature. Okay, now since this weight is on the piston, therefore it is pushing some pressure on the piston, and due to which there is some initial condition which is represented by 1 on a pressure volume graph. So here you can see that this condition is represented by pressure volume graph over here. Okay, so as I told you, the cylinder contained with gas, okay, and the gas is in a equilibrium condition. Okay, the initial condition is represented by state 1, which was P1, V1 and T1. Okay, now what will happen, we will remove the weight from the piston. Suddenly all the weight from the piston will be removed. So as you know, the piston was pushing it piston downward, the weight was pushing the piston downward, and when the weight will be removed, due to the pressure of the gas, the piston will move up. Okay, so I will show you in the figure, there are brakes in the figure. Okay, and the piston will stop at the highest position, and then again we will measure the pressure, volume, temperature, and we will denote it by P2, V2 and T2. Since this process occur very suddenly, very fast, this will not be a quasi-static process. Okay, let's see it from the figure. So as I already told you, the weight is here. Okay, now suppose I have removed this weight from here, what will happen, this piston will move upward till this stop, or you can say, you can call this a stop, or you can call it brake. The piston cannot move beyond this stop. Okay, you can understand, because this piston, when it will move upward, it can maximum move till this stop. So you can see here that this was the initial condition. Okay, and this one will be the final state. So initially when we have measured the pressure, volume, so it on the PV graph we have seen that initial pressure is P1 and initial volume is V1. Okay, similarly if we see the final pressure, okay, so this is an expansion process. In the expansion process, what will happen, expansion process, the pressure will decrease, so the final pressure is P2.
okay, and what will happen, the volume will increase, so you can see the final volume is V2. So this process is very fast, happens suddenly, so this is not at all a quasi-static process. ठीक है, तो आपने अभी देखा डायग्राम में कि हमने सिलेंडर और पिस्टन की एक असेंबली देखी, ठीक है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया था, ठीक है। तो सिलेंडर की जो आपकी गैस थी वो एक संतुलित अवस्था में थी। कैसे संतुलित अवस्था में थी कि हमने उसके ऊपर क्या करा था, जो आपका एक पिस्टन रखा था उसके ऊपर आपका वजन रख दिया था, ठीक है। तो पिस्टन पे जो हमने वजन रखा था, तो पिस्टन के वजन के वजह से वो एक संतुलित अवस्था में थी। जब हमने पिस्टन के वजन को हटाते हैं, ठीक है, तो पिस्टन ऊपर की दिशा में जाएगा, ठीक है। ऊपर की दिशा में जाने पर जो एक रोक लगी हुई है उस रोक तक जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम इस स्थिति में जब अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाएगा, जो रोक है जहां तक वहां तक पहुंच जाएगा, तो वो कंडीशन उसकी दूसरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हम P1 V1 T1 से ले रहे हैं, ठीक है, और फाइनल कंडीशन P2 V2 T2 से ले रहे हैं। ये कंडीशन इतनी तेज़ी से बदली है कि हमारे पास बस इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है, बीच की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से ये अस्थैतिक प्रक्रिया आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो जैसा कि वही चीज़ मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका लिए जो आपका ये वेट है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस वेट के वजह से इसके अंदर की जो गैस है ये एक साम्यावस्था की स्थिति में है, जो कि हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे क्या कर रहे हैं, हमारी वन कंडीशन से दिखा रहे हैं। जब प्रेशर आपका दाब P1 है और आपका आयतन V1 है, जब हम क्या करेंगे, इस वेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इससे टकरा जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके इससे टकराने पर अब क्योंकि आपका विस्तार होगा, विस्तार होने के वजह से जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, वो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अब कम होके वो P2 हो गया, आयतन आपका कम हो जाएगा, आयतन कम आपके होके V2 हो गया। ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होगी यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें हमें बीच के कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से ये हमारी अर्धस्थैतिक प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन इन अ quasi-static process, now the weight which we were using, okay, now that weight, so now see what will happen in a quasi-static process. When we will see a quasi-static process, what we are doing, the same experiment, but now as you can see the weight we are having, it has been divided into number of layers. So this weight can be removed in form of number of layers. ये हमने क्या किया है, अब या quasi-static प्रोसेस के लिए पूरा एक बड़ा वेट ना रख के छोटे छोटे पार्ट्स में वेट्स को यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आपका डिवाइड किया है यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में वेट को डिवाइड कर दिया है। तो अब इसमें बस क्या होगा डिफरेंस, हर बार एक छोटा वेट जो है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, हर बार एक छोटा वेट यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका उठाएंगे। तो एक हमने क्या किया, छोटा वेट उठाया, ठीक है। हम 1 से थे, 1 से हम यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि 1 से जो है हम ये सेकंड पोजीशन पे पहुँचे। दूसरा वेट हटाया तो यहाँ पे पहुँचे, तीसरा वेट हटाया यहाँ पे, चौथा हटाया यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, 7 8 10 इनफाइनाइट वेट्स थे, उनको हटाते हुए फाइनली हम क्या करेंगे, 2 पोजीशन पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पूरे वेट्स एक साथ ना हटा के हम एक एक करके वेट हटाते हैं, जिसके वजह से हमें बीच की जो सारी कंडीशन है, पहले क्या हो रहा था, हमें केवल 1 मिल रहा था और 2 मिल रहा था जब हम सारे वेट एक साथ हटा दे रहे थे। मगर जब हम एक एक करके वेट हटाते हैं तो आप देख सकते हैं उस कंडीशन में हमारे बीच के जितने पॉइंट्स हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने हम चाहें, जितने पार्ट्स में हमने वेट को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, उतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जब हम प्रोसेस को, प्रक्रिया को इतनी धीमे तरीके से करते हैं कि हमें बीच के सारे पॉइंट्स मिलते हैं, तब ये हमारा quasi-static प्रोसेस या अर्धस्टैटिक प्रक्रिया होती है। सो द वेट्स आर रिमूव्ड वेरी स्लोली इन सच अ मैनर दैट all the points over here, okay, you can see that all the points here, second, third, fourth, fifth, sixth, all the points in between, where you can calculate the pressure
and volume at each point. When you remove one weight, you calculate pressure volume. When you remove two weight, so now the condition of the gas will not be from 1 to direct 2. So it will be through number of these small points, which here you can see has been represented. Okay, so these are the small points which has been represented over here on the graph, which represents different pressure volume. Okay, different pressure volume for the graph. So this process will be a quasi-static process. ठीक है, let us consider the above single weight placed over a piston replaced by infinite small weights. If we remove very slowly, infinitesimally small weights one by one from the piston, what will happen? When we remove the first infinite small weight from the piston will move very slowly, as well as infinitesimally small amount, and will secure its next equilibrium state, which is represented by a cross. Due to removal of infinitesimally small weight one by one, also quite slowly, the system will process from one state to another with a succession of equilibrium states. So when it is going through number of small steps, and you were moving down the roof with number of small steps, then it will be a quasi-static process. If it is direct from 1 to 2, then it will not be a quasi-static process. तो वही चीज़ है कि आइए, है ना, वही बात हो रही है कि हम उपरोक्त एकल वजन पर विचार करते हैं जिसे पिस्टन के ऊपर रखा गया है, जिससे कुछ छोटे छोटे भार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो उसको छोटे छोटे भार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अगर हम पिस्टन से एक एक करके बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे वज़न हटाते हैं जो बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो क्या होगा? जब हमें पिस्टन से पहले छोटे वज़न को हटाएंगे तो पिस्टन बहुत धीरे और साथ ही असीम रूप से छोटी राशि के साथ बढ़ेगा। भाई जितना ज़्यादा वेट हटाएंगे पिस्टन उतना ज़्यादा मूव करेगा, वेट जितना कम हटाएंगे पिस्टन उतना कम मूव करेगा, और इसके अगले संतुलन की स्थिति सुरक्षित हो जाएगी। भाई थोड़ा सा मूव करके रुक जाएगा। ठीक है, असीम रूप से छोटे वजन को हटाने के कारण एक एक करके काफ़ी धीरे धीरे सिस्टम संतुलित स्थितियों के उत्तराधिकार के साथ एक स्थिति, राज्य आ गया उस स्टेट के कन्वर्जन। तो राज्य यहाँ पे है ना, मैं वीडियो में बता रहा हूँ, राज्य को कट करके यहाँ पे स्थिति लिख लीजिएगा, राज्य की जगह स्थिति। एक स्थिति से दूसरे स्थिति में प्रक्रिया करेगा। तो वही चीज़ है कि डायरेक्ट 1 से 2 पे नहीं आ गया, जो कई सारे आपके क्रॉस बने हुए थे वो क्रॉस से होते हुए आ रहा है। कई सारी उसकी जब स्थितियाँ होंगी, जैसे आप जब सीढ़ी उतर रहे थे तो कई सारे आप स्टेप ले रहे थे, तो वो कंडीशन अर्धस्थैतिक प्रक्रिया की होगी। अगर डायरेक्ट जंप कर गए यानी 1 से 2 पहुंच गए, सारा वेट एक साथ हटा दिया है, तब अर्धस्थैतिक प्रक्रिया नहीं होगी। अर्धस्थैतिक प्रक्रिया तब होगी जब सारे वेट धीरे धीरे एक एक करके हटाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली इसका हम एक सम अप कर लेते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। सच अ प्रोसेस where system process in such a manner as studied above will be termed as quasi-static process or quasi-equilibrium process in the field of thermal equilibrium. Okay, so thermal engineering. ठीक है, so as we have studied that the process which is occurring very slow, okay, and in such a way that there are many equilibrium condition, such a process will be quasi-static equilibrium process. Okay, now इस तरह की एक प्रक्रिया, जहां इस तरह की प्रणाली की प्रक्रिया का अध्ययन ऊपर किया गया है, ठीक है, को ऊष्मागतिकी के क्षेत्र में अर्धस्थैतिक प्रक्रिया या अर्ध संतुलन प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जो बहुत ही धीमे गति से हो रही है, जिसमें कई सारे आपके जो साम्य अवस्था की स्थितियां हमें मिल रही हैं, उस स्थिति को जो है हम क्या कहेंगे, हमारी जो अर्धस्थैतिक स्थिति है उसको कहेंगे। जब हम दो हमारे पास कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल पे से फाइनल डायरेक्ट ना पहुंचकर
कई सारी स्थितियों से गुजर के जब हम पहुंच रहे हैं तो उसे हम जो कहेंगे वो हम अर्धस्थैतिक स्थिति कहेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर चाहें तो बेल नोटिफिकेशन को जो आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर के आपको अपडेट्स हैं वो बिल्कुल टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।